Guys, thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle, and today we are going to understand how to revise cost accounting paper number 8 in 8 days. And I have made this revision plan for paper 8 in such a manner that you have to contribute only 3 to 4 hours every day, and you have to follow this for 8 days, right? 8 days. So first day, day 1, you should go for those chapters which carry more marks, right? So as soon as you complete those chapters, you complete the revision of those chapters, your confidence will boost, right? So day 1, you should revise marginal cost chapter. It will take you approx 2 to 2.5 hours. And then what all things you have to cover in this chapter? You have to revise the theory point wise, either from the book or from the note, right? If you have not made any note for this chapter, you can join my Telegram channel whose link is given in the description box below, and there I have provided my notes of marginal costing chapter. Then you have to do the numericals and revise the formula, right? इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं which you have to revise, and you have to solve the numericals based on those formula and these theories, right? There are total 21 questions in this chapter in paper 8. You should do one thing for quick revision, that is you have to highlight the important parts of any numerical. Wait, I'll show you. Just the way I have made this, so that just one day before the exam you can take a look on these highlighted points only and these concepts, right? So and after that you have to solve all the MCQs from the book and ICMI MCQ bank, right? And after that take some break, do whatever you want to do. And as this chapter is the long chapter, I have clubbed another very short chapter with this marginal cost, right? That is job costing. डे 1 में ही आपको करना है, थ्योरी इसमें पढ़ना है, और इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं 6 न्यूमेरिकल्स टोटल गिवन है. यू कैन डू दैट फ्रॉम योर ICMI मैट, एंड यू हैव टू डू द वेरी सेम थिंग, दैट इज हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी न्यूमेरिकल, राइट? और आपको MCQ तो करना ही है. नेक्स्ट इज योर डे 2. डे 1 completed. How many times you have to give? Maximum 3 to 3.5 hours you gave in the first day. सेकेंड डे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर ले लो. ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपके टोटल 13 क्वेश्चंस हैं. इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, 15 मिनट में 10-15 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा थ्योरी. फॉर्मूला रिवाइज कर लो इसके. आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल दोज फॉर्मूलाज, एंड इट विल टेक यू ओनली 1.5 आवर maximum 1.5 hours. There are total 13 numericals, out of which you don't have to solve every numerical. Just take the calculator and do all the calculations like this, and just take out the answer. Then do the MCQ from the book or ICMI MCQ bank. Then take a break, and the very same day, यानी कि सेकेंड डे में ही आपको बजटरी कंट्रोल का चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों ही इजी एंड हल्के चैप्टर्स हैं. सो और ये ज्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, सो इसीलिए ये दोनों को मैंने एक ही दिन में रखा है. इसमें आपको 2 आवर्स लगेगा. पहले आप थ्योरी पढ़ लो, कितने टाइप्स ऑफ बजट्स हैं उसका एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, सो दैट आपको एग्जाम से पहले उसको देखने में इजी रहेगा. सेकेंड है, आप लोग कॉन्सेप्ट जो भी है ना उसको रिवाइज कर लो. एंड देयर आर 14 न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर. जस्ट गो थ्रू देम एंड सॉल्व द MCQs, राइट? सेकेंड डे कंप्लीट हो गया. कमिंग टू द थर्ड डे. थर्ड, हम लोग का जो स्टडी नोट, लास्ट वाला स्टडी नोट है, वो कंप्लीट हो गया इन तीनों चैप्टर्स के साथ. कमिंग टू द थर्ड डे में आपको क्या करना है? फर्स्ट टेक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है? ये वाले चैप्टर में आपके 13 क्वेश्चंस हैं. इसका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट आप लोग देख लो. इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, वो सब फिर से रिवाइज कर लो, एंड इट विल टेक यू मैक्सिमम 2 आवर्स, राइट? मैक्सिमम 2 आवर्स इट विल टेक यू. एंड MCQs इसके अगर हैं तो सॉल्व कर लो वो. फिर उसके बाद, क्योंकि ये इस चैप्टर के बाद आप एक और चैप्टर कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है ना, इसमें टोटल 9 न्यूमेरिकल्स हैं, और थोड़े क्वेश्चंस इसमें इजी भी हैं, राइट? जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत इजी हैं, आप सिंपली कैलकुलेटर लेके ही कर सकते हो. सो इट विल टेक यू मैक्स 1 to 1.5 आवर्स. एंड आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक एंड do either batch costing or any topic that is easier, comparatively easier.
बैच कॉस्टिंग में क्या है, यू हैव टोटल 4 न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट, do the MCQ. It will take you hardly 45 minutes, max to max 45 minutes. After that, coming to day 4, process costing is one of the most lengthy chapters, right? So it will take you 2.5 hours, I think, and you have to brush up all your concepts. You have to go through the numericals. तो प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ये वाला जो ये दोनों चैप्टर्स एक ही साथ है बुक में, राइट? मैंने इनको अलग अलग बताया है यहाँ पर क्योंकि लेंथी चैप्टर है और समझना भी इसका थोड़ा सा, इसमें बहुत समझने की चीजें हैं, राइट? सो इसीलिए न्यूमेरिकल्स में देर आर 10 न्यूमेरिकल्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग इटसेल्फ एंड 12 न्यूमेरिकल्स इन जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्ट. सो फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग इट विल टेक यू मैक्सिमम 2.5 hours. And for joint and byproduct cost, it will also take you 2.5 hours, right? So मैंने ये दोनों सेम डे में ही रखा है, लेकिन अगर आप लोगों को ये ज्यादा हैवी लग रहा है, so you can switch this chapter with your day 5. So day depending upon your capacity, आप इन दोनों चैप्टर्स को day 4, 5 में एक एक करके भी आप कर सकते हैं. So day 4 कंप्लीट हुआ आपका, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाई-प्रोडक्ट कॉस्ट कंप्लीट हो गया. कमिंग टू डे 5, फिफ्थ डे में यू हैव टू गो थ्रू द सेकेंड स्टडी नोट. उसमें क्या क्या है, मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है एंड ओवरहेड कॉस्ट है. सो मटेरियल कॉस्ट में क्या है, मटेरियल कॉस्ट आपको 1.5 आवर्स लगेगा मैक्स, क्योंकि इसमें थियोरी थोड़े बहुत है, फॉर्मूला भी थोड़े बहुत हैं. फॉर्मूला काफी सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, और इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, टोटल 20 न्यूमेरिकल्स आर देयर, जिसमें से EOQ एंड छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स अराउंड 6-7 हैं. सो इस चैप्टर को रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल ओनली टेक यू 1.5 hours. नेक्स्ट कमिंग टू एम्प्लॉय कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेना, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाना, फिर आप क्या पढ़ना, एम्प्लॉय कॉस्ट. एम्प्लॉय कॉस्ट इट विल टेक यू 2 hours, और इसमें टोटल 25 न्यूमेरिकल्स आर देयर, लेकिन इनमें बहुत सारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं. न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले एम्प्लॉय कॉस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि उसका थियोरी बहुत है और इसमें से MCQs आने के चांसेस बहुत सारे हैं, राइट? एंड यू हैव टू ऑल्सो रिवाइज द फॉर्मूलाज, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट में काफी सारे फॉर्मूलाज भी हैं. अभी कंप्लीट हो गया आपका 5th डे. कमिंग टू योर डे 6, यू हैव टू गो थ्रू ओवरहेड कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये मैंने दोनों को ही साथ में लिखा है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो छोटा चैप्टर है, बस 10 मिनट में हो जाएगा, राइट? सो ओवरहेड कॉस्ट विल टेक यू 2.5 hours मैक्सिमम. यू हैव टू गो थ्रू द थियोरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देयर आर टोटल 20 न्यूमेरिकल्स. सो रिवाइज ऑल दोज न्यूमेरिकल्स, और फिर आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लेना, थोड़ा रिलैक्स कर लेना. उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, वो है आपका कॉस्ट शीट, ठीक है? कॉस्ट शीट वाला जो चैप्टर है, इसमें टोटल आपके 7 न्यूमेरिकल्स हैं और काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं. आप सिंपली एक रफ पेन पेपर ले लो, कैलकुलेटर ले लो, और ये जो 7 न्यूमेरिकल्स हैं मैक्सिमम 1.5 hours में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? डे 6 आपका खत्म हो गया. कमिंग टू योर नेक्स्ट डे, दैट इज डे नंबर 7. इंटीग्रल अकाउंट्स एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स है इन कॉस्टिंग. सो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आर देयर. आपको 2.5 hours लग जाएगा ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते. इसके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी जाना, क्योंकि इसमें से बहुत सारा MCQ भी आ जाता है आपका. फिर डे 7 में आपका इंटीग्रल अकाउंट्स हो गया. उसके बाद आप लोग चाहे तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज कर सकते हैं. छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको इसको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए है ये आपको याद रखना है. सो इट विल टेक यू मैक्सिमम 1 hour, और डे 7 आपका कंप्लीट हो गया. कमिंग टू द लास्ट डे, दैट इज डे नंबर 8. इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो भी थियोरी है ना आपका, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टडी नोट नंबर 1, उसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन वाला चीज दिया है, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए. टेक 2.5 hours और 2 hours, जितना भी आपको टाइम लग रहा है, टेक दैट मच ऑफ टाइम, उसको अच्छे से पढ़िए, बिकॉज इसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं एंड थियोरी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? सो इसमें से भी बहुत सारे थियोरी क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं. तो ये दोनों चैप्टर्स भी थियोरी करके मत छोड़िए, इन दोनों चैप्टर्स को भी आप कंप्लीट कर लीजिए. अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, सो आप इंटीग्रल अकाउंट्स एंड जो प्रोसेस एंड जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट है, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर के साथ आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर आपको छोड़ना है तो. बट
बाकी सब कुछ आप अच्छे से पढ़िए। और ये ख़त्म हो गया आपका 2.5 आवर्स या मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स में। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने इन 7 दिनों में, पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है उन सबको फिर से आप बस एक एक पेज पलटा के उन सबको एक एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो सिलेबस है, पूरा पेपर 8 का सिलेबस 8 दिन में टोटल 30 आवर्स में पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 30 आवर्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डेज आर देयर, 8 डेज, तो आपका हर डे में 3.75 आवर्स, मैक्स टू मैक्स आप ले लो 4 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे का आपको बस पढ़ना है और आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन आपको 3 से 4 घंटे देना है, ठीक है, 3 to 4 आवर्स एवरी डे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ like the video, share with your friends and subscribe to my channel The Witty Turtle। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है so the link is given in the description box, please go and check it out।